So, hello and good evening, everyone. So, how have you all been? And this is going to be my pleasure and delight to host this event, to be the moderator of this event through Zenaverse, because music is very, very close to my heart. And today I bring forth to you stalwart of music. I would call him an epitome of music, and why you will shortly know in the few minutes that we are going to be here with you. So, please help me to welcome Colonel V.D. Singh, who is once again, as I said, he is an epitome of music. And why I say that is because he has his own uniqueness. And his uniqueness is that he generally doesn't mimic. Generally, what? I'm sure, 100% sure, he doesn't mimic original artists while singing. And also doesn't make any Xerox copy of original tracks. He has a very unique, his own style of playing, so that his contribution as a player and composer gets reflected. And in his tracks, he plays all instruments himself, whether it is keyboard, whether it is guitar, whether it is bass and percussions, whatever. So I would call him a living orchestra, that he plays everything himself. That's what I would call him. And basically, Colonel V.D. Singh hails from Lucknow. He's settled in Ambala now from after his post superannuation in 2017, and he continues with his passion for music. And while he possesses his interdisciplinary credentials to include engineering, aviation, management, and Buddhism, he is definitely a gifted musician. And his musical journey began way back when he was in the school, from a famous beat group called Sparks Orchestra from Lucknow as a bass guitar player and singer, then freelance composer and sound engineer, having won Best Music Composer Award during Jodhpur International Film Festival 2020. Isn't that amazing? And he participates every year at Ladakh Music Festival with his own music. He plays many instruments besides singing. He has a wonderful voice, I must say that. And presently, his jazz music is streaming worldwide over Spotify, Amazon Music, and Apple Music, and many other streaming services. He actually experiments with music, which is really wonderful to give novelty to the things, and in his home studio called Padarth Studio, where he creates own tracks, presents his worldwide through his YouTube channel Padarth Studio. He is primarily into jazz and retro music. And trust me, I don't want to be between him and all of you. So I definitely would request him to kindly take over and really touch the notes of our heart through his performance once, please. Welcome, Colonel V.D. Singh. Welcome on the show. Thank you very much, Kavita, for speaking such good words about me. And I'm singularly privileged that I'm being interviewed by you. You are a celebrity in your own way. So, as rightly brought out by you, I do experiments, various types of experiments with music without mimicking anything. Because I strongly believe that those great artists who are no longer with us in this world, they were unique. I mean, nobody has got rights to kind of do mimicry of those artists. But yes, music is good, lyrics are good, and I always love to sing those songs in my own way, in my own कहते हैं ना, अपनी अपनी आवाज. सही सो कहा. बिल्कुल. तो वो बहुत ज़रूरी होता है. और मेरे ख्याल से आज की इस छोटी संगीत भरी शाम की शुरुआत मैं एक पुराने गाने से करता हूँ, एज आई सिंग ओल्ड सॉन्ग्स. और ये मैं आपके सामने गाना चाह रहा हूँ. हेमंत कुमार साहब का गाया हुआ है ये. वाह. बहुत मशहूर मशहूर सॉन्ग है. बहुत दिल से गाते हैं हेमंत कुमार जी भी. जी जी. और इसके बोल हैं, मेरे ख्याल से हम सभी लोगों ने सुना है, क्या बच्चे और क्या बड़े, ये नयन डरे डरे. ओह, सुपर सुपर. ये नयन डरे डरे, ये जाम भरे भरे,
जरा पीने दो कल की किसको खबर एक रातों के निडर मुझे जीने दो Beautiful, really beautiful. रात हंसी ये चांद हंसी तू सबसे हंसी मेरे दिल पर रात हंसी ये चांद हंसी तू सबसे हंसी मेरे दिल पर और तुझसे हंसी Yeah. और तुझसे हंसी तेरा प्यार तू जाने ना ये नयन डरे डरे ये जाम भरे भरे जरा पीने दो ये नयन डरे डरे प्यार में है जीवन की खुशी देती है खुशी कई गम भी प्यार में है जीवन की खुशी देती है खुशी कई गम भी मैं मान भी लूं मैं मान भी लूं कभी हार तू माने ना ये नयन डरे डरे ये जाम भरे भरे जरा पीने दो कल की किसको खबर एक रातों के निडर मुझे जीने दो ये नयन डरे डरे Superb, mind blowing. What a fantabulous performance. Really beautiful number. I must say, दिल को छूने वाला गीत था ये. तो मैं थोड़ा सा जानना चाहती हूँ इस डीप सेट सिंगिंग के पीछे इन सब ट्रैक मेकिंग के पीछे what inspired you to create tracks and which all genres and what is the story behind your track making? I would like to know that. ओके ये क्वेश्चन बिल्कुल आपने यानी जेनेसिस इसका कैसे वो वहाँ से शुरू किया आई एम सो हैप्पी दैट यू हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन असल में एज यू ऑलरेडी नो आई एम फ्रॉम लखनऊ और लखनऊ जो है हमारे संगीत और कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है सो ड्यूरिंग माय कॉलेज टाइम आई एम ए प्रोडक्ट ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी मैं पार्ट टाइम यानी मेरा अपना बैंड तो था ही उसके अलावा पार्ट टाइम मैं एक प्राइवेट स्टूडियो था उसमें मैं काम करता था आउट ऑफ ओन इंटरेस्ट इट नेवर जनरेटेड एनी मनी फॉर मी बिकॉज आई वॉन्टेड टू लर्न मोर देन जस्ट प्लेइंग एंड सिंगिंग और मुझे इंटरेस्ट था कंट्रोल रूम के अंदर झांक के देखने का कि वहाँ पे क्या हो रहा है सो आई वुड ऑफन वंडर ये इतनी ज़बरदस्त रिकॉर्डिंग करते हैं कैसे होता है ये
तो मैंने एक दिन वहाँ पे जाके वहाँ के जो बहुत सीनियर एक साउंड रिकॉर्डर्स थे, लेट श्री रवि घंटसाला, साउथ इंडिया में बहुत मशहूर रहे हैं पहले ये। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर मैं इसके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ, एंड डोंट वरी आई एम ए टेकी, सो मुझे टेक्निकल टर्म्स सब पता है, लेकिन ऑडियो इंजीनियरिंग की जो न्यूएंसेस हैं वो मुझको थोड़ा सीखना है। तो उन्होंने कहा ऐसा है बच्चे, मेरे साथ 1-2 घंटे बैठो शाम को। तो कविता, आई यूज टू साइकिल डाउन फ्रॉम माई होम, मैं महानगर में रहता था, वाओ। और वहाँ से हजरतगंज को पार करते हुसैन के नाम की जगह है, मैं एक कोई 8-10 किलोमीटर का सफ़र तय करके जाता था, आउट ऑफ प्योर पैशन फॉर लर्निंग। और वहाँ पे मैंने धीरे धीरे वो चीज़ें सीखी। मेरे पास कोई भी फॉर्मल एजुकेशन नहीं है ऑडियो इंजीनियरिंग की। द ओह, ओनली थिंग ओके। आई हैव इज आई हैव अ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। वाओ। और उस टाइम पे डिजिटल तो होता ही नहीं था। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, मैं आपके 80s लेट 80s वगैरह की। तो मैं फिर थोड़ा मैंने सीखना शुरू किया, और फिर उन्होंने थोड़ा सा जब भरोसा हुआ तो उन्होंने थोड़ा सा अपना असिस्टेंट जैसा बना लिया मुझको। वाओ। दिस इज हाउ इट ऑल स्टार्टेड। अच्छा, म्यूजिक का ऐसा रहा है कि शुरू से ही आई हैव इनहेरिटेड म्यूजिक फ्रॉम माय लेट मदर। She was naturally talented, but because of the family constraints and coming from a conservative Rajput family, she was never allowed to sing on a stage. तो उनकी सारी कलाकारी घर में ही होती थी। उनको सुन सुन के मैं बड़ा हुआ, एंड मेरा एक नेचुरल इंटरेस्ट हुआ पुराने गानों के अंदर। पुराने गानों के अंदर एक कशिश है, उनकी लिरिक्स आप देखिए, उनकी धुन आप देखिए, कितनी खूबसूरत होती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। एंड दे जी, हैव अ वेरी लॉन्ग सेट शेल्फ लाइफ, आई मीन दे आर ऑलवेज अलाइव। आज जी आप देखिए, आज जो मैंने अभी गाना गाया, ये नयन डायरेक्टर है, ये गाना कोई 60-65 साल पहले रिकॉर्ड हुआ था। ट्रू। तो इन गानों की खासियत ये है, ये आपने सही कहा कि इनकी शेल्फ लाइफ जो है वो बहुत होती है। तो इस तरीके से मैं इस चीज़ के अंदर घुसा, और बाद में कई सालों के बाद जब मैंने अपने आप को इस लायक समझा कि मैं एक छोटा सा एक होम स्टूडियो काइंड ऑफ अ थिंग कर सकता हूँ व्हाइल आई वाज सर्विंग इन द आर्मी। तो मैंने एक छोटा सा एक होम स्टूडियो सेटअप किया, और उसका नाम रखा पदार्थ स्टूडियो, क्योंकि लखनऊ के हैं तो दिमाग खुराफाती रहता ही है। तो किसी ने कहा भाई पदार्थ क्यों? मैंने कहा पदार्थ मीन्स सब्सटेंस, म्यूजिक के अंदर भी सब्सटेंस है। यस। तो इसीलिए उसका नाम पदार्थ स्टूडियो रखा, और बड़ा हम्बल सा एक सेटअप बना के और मैंने स्टार्ट किया। मेरे साथ एक एडवांटेज ये थी कविता कि बिकॉज आई प्ले अ होस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, तो मुझे ज़्यादा इधर दूसरों पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और ट्रैक का मतलब ही है कि मल्टीपल ट्रैक्स। सो उसमें ये नहीं, रिदम ट्रैक बना लिया, फिर कॉर्ड्स का बना लिया, फिर हारमोनी का ट्रैक बना लिया, करते करते ना लेयरिंग है, और इस तरीके से ये सारे ट्रैक्स मैंने बनाने शुरू कर दिए। और तो अभी मेरे पास मेरा आई हैव माई ओन यानी मेरा अपना खुद का डेटाबेस है। आई डोंट लिफ्ट फ्रॉम हेयर एंड देयर, कि मतलब आजकल तो वो टेक्निक आ गई नहीं सॉफ्टवेयर में कि आप ऑडियो गायब कर दीजिए बाकी सब आ जाता है। यस, यस। आई एक्चुअली प्ले विद माई ओन हैंड्स। दैट्स रियली ब्यूटीफुल। सो इट मे नॉट बी वेरी परफेक्ट, लेकिन बात परफेक्शन की नहीं है, बात यह है कि जो अपने हाथ से चीज़ बनाई हुई देसी चीज़ देसी चीज, उसकी सही बात। बात। तो जैसे आपने कहा पदार्थ, सब्सटेंस, जी तो कोई एक ऐसा सब्सटेंस वाला एक हो जाए, जी एक जिसे कहते हैं ना, एक पेश नजर हो जाए तो अच्छा लगेगा। प्लीज, कुड यू प्लीज डू इट फॉर जरूर, अस? जी ज़रूर ज़रूर। एक 70s की मूवी है, आई थिंक संजीव कुमार और हीरोइन कौन है मुझे याद नहीं, अनुभव नाम था ये। इट वाज अ ब्लैक एंड वाइट मूवी। ओके, ओके। और इस फिल्म के अंदर जो म्यूजिक दिया था वो कनू रॉय ने दिया था। अब मुझे पता नहीं कितने लोगों को पता होगा कनू रॉय साहब के बारे में, बंगाली म्यूजिक में तो था ही उनका। लेकिन इस फिल्म का म्यूजिक उन्होंने बहुत खूबसूरत बनाया है, और जैसे आपने कहा ना सब्सटेंस वाली चीज़ वो इसमें है। और मैंने कोशिश की है इसको, इस ट्रैक को अपने ही मैंने स्टूडियो में तैयार किया है, और मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। और इस बिल्कुल। सॉन्ग को गाया है मन्ना डे साहब ने। अरे फिर वाह। कहीं कोई, बहुत ही फिलोसफिकल गाना है ये, और मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि एक सेमी क्लासिकल टच है। आई एम नॉट ए क्लासिकल सिंगर एट ऑल, लेकिन मैंने कोशिश की है। मैं आप पेश करता हूँ आपके सामने। परफेक्ट, परफेक्ट, प्लीज।
फिर कहीं कोई फूल खिला, चाहत ना कहो उसको। फिर कहीं कोई फूल खिला, चाहत ना कहो उसको। फिर कहीं कोई दीप जला, मंजिल ना कहो उसको। फिर कहीं बहुत खूब, बहुत खूब। मन का समंदर प्यासा हुआ, क्यों किसी से मांगे दुआ। मन का समंदर प्यासा हुआ, क्यों किसी से मांगे दुआ। लहरों का लगा जो मेला, तूफान ना कहो उसको। फिर कहीं कोई फूल खिला, चाहत ना कहो उसको। फिर कहीं देखे क्यों सब वो सपने, खुद ही सजाए जो हमने। देखे क्यों सब वो सपने, खुद ही सजाए जो हमने। दिल उनसे बहल जाए तो राहत ना कहो उसको। फिर कहीं कोई फूल खिला, चाहत ना कहो उसको। फिर कहीं कोई दीप जला, मंजिल ना कहो उसको। फिर कहीं सुपर्ब, सुपर्ब, सुपर्ब। मतलब क्या दिल को छूने वाली बात है कि फिर कोई कहीं फूल खिला, चाहत ना कहो उसको। क्या बात है, दिल को छू गया ये चीज तो बहुत ही ज्यादा। और मैंने तो पहली बार सुना, जबकि मैं म्यूजिक में इंटरेस्ट रखती हूँ, उसके बावजूद मैंने इसे पहली बार सुना। मन्ना डे साहब की आवाज में एक अलग कशिश थी, और इस आवाज में तो कुछ और ही कशिश थी। सो ब्यूटिफुल सॉन्ग इट हैज बीन। और मुझे ये समझ नहीं आता, ये आइडिया कहाँ से आते हैं आपको? आई मीन, डू यू हैव एनी यूनिक सोर्सेज ऑफ इंस्पिरेशन फॉर ऑल दीज ट्रैक्स एंड नंबर्स दैट यू सिंग? बहुत बहुत अच्छी चीज पूछी आपने। सबसे पहला जो इंस्पिरेशन मेरे पास ज्यादा गया था वो है मेरी माँ से। माई मदर यूज टू सिंग गुड ओल्ड नंबर्स, रेयर नंबर्स। और जाहिर सी बात है वो जो गाने गाती थी वो 50s के जॉनर के गाने होते थे। और ये गाने सुन सुन के जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि पुराने नगमों के अंदर जो एक खासियत होती है, वो कंपेयर करना बड़ा मुश्किल है। मैं विद ड्यू रिगार्ड टू द मॉडर्न म्यूजिक, म्यूजिक कोई ख़राब नहीं होता, समय के साथ सब चीज़ें बदलती हैं। तो मेरा इंस्पिरेशन सबसे पहले मदर से आया। दूसरा इंस्पिरेशन मुझे ये आया कविता कि कई एक गाने ऐसे होते हैं जो फिल्म फेमस नहीं हो पाती, लेकिन क्योंकि गाना अच्छा है इसलिए फिल्म फेमस हो जाती है। तो आप इस बात को वेरी ट्रू, मानिए वेरी ट्रू। कि क्योंकि उस गाने में कोई ऐसी बात है। रेयर सॉन्ग्स होते हैं कुछ एक ऐसे रेयर सॉन्ग्स मैं गाता हूं जो एफएम चैनल के ऊपर प्रोबेबली साल में 1 या 2 बार बजते होंगे। मैं ऐसे किस्म के गानों को सुनता हूं, उनको आत्मसात करता हूं, अंदर अच्छी तरह से बिठाता हूं और then I make a humble attempt to create the track using my
कीबोर्ड एंड मेरा वर्क स्टेशन वगैरह जो भी है। और इस तरीके से ये जो गाने, ज़्यादातर गाने जो कि एफएम वगैरह पे बहुत ज़्यादा नहीं सुनाई देते हैं। रीज़न बीइंग, ये गाने जब कोई इंसान सुनता है वो कहता है अच्छा ओह ये भी एक फिल्मी गाना है क्या? तो फिर मैं कहता हूँ जी। और मैंने इसको अपने स्टाइल में गाया। ना मैं मन्ना डे बन सकता हूँ, ना मैं हेमंत कुमार साहब बन सकता हूँ। मैं इसको अपने स्टाइल, बल्कि आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा कि बिकॉज माई ओरिएंटेशन इज वेस्टर्न म्यूजिक, तो मेरे जो भी प्रिल्यूड वगैरह होते हैं सबके, वो बिल्कुल। एक वेस्टर्न म्यूजिक के टच में उस हिसाब से होता है। ओरिजिनल गाने में ऐसा कोई प्रिल्यूड नहीं है। राइट, राइट। एंड जो आपकी इंस्पिरेशंस रही हैं कुछ सॉन्ग्स, तो क्या आप उस यूनिक इंस्पिरेशन पे कोई सॉन्ग या कुछ हमें सुना सकते हैं, जो भी आपका एनीथिंग दैट हैज इंस्पायर्ड यू? ज़रूर ज़रूर। चलिए मैं अगला नगमा लेता हूँ। और जैसे कि मैंने बताया कि सारे जो भी नगमे में गाता हूँ उनको बहुत दिल से मैं तैयार करता हूँ, मतलब एक बिल्कुल। लाइक ए रेसिपी। तो जो कि पहले दिल को छू जाए। तो कुछ आपको मैं लाइनें सुनाता हूँ, आप इमीडिएटली समझ जाएंगे कि ये कौन सा गाना है। इट इज़ अ रिप्राइज वर्जन, हेमंत साहब का ही है ये। जी। ये सच है जीना था पाप तुम बिन, ये पाप मैंने किया है अब तक, मगर है मन में छवि तुम्हारी, मगर है मन में छवि तुम्हारी, कि जैसे मंदिर में लो दिए कि छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा, कि जैसे मंदिर में लो दिए कि छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा, कि जैसे Wow, wow, what an inspiration. I must say, hats off to your mother who has blessed you with a wonderful voice and who has blessed you with this beautiful inspiration. So, furthermore, like with this creativity of yours, I definitely would love to know what's your creative process like, right? And like what kind of a specific routine or approach you have. For example, even I love music or even I sing sometimes, but then there has to be a specific routine or an approach, and there has to be a creative process. Not everybody can be that creative as you are. So would you enlighten us on that? इसमें सबसे बड़ी बात यह है कविता कि मैंने यानी अपने गाने के बारे में सोच विचार को कोई फॉर्मेट के अंदर नहीं डाला। इट इज समथिंग लाइक, मैं कोई गाना सुन रहा हूँ रेडियो के ऊपर, रेडियो में ज़रूर सुनता हूँ क्योंकि उसमें बहुत अच्छे अच्छे गाने आते हैं। सडनली कोई गाना एकदम से छू जाता है दिल को, और एनी टाइम ऑफ द डे, चाहे वो सुबह हो या दोपहर हो या कुछ भी हो, बस वो गाना एक बार दिमाग में उतर गया। उसके बाद फिर मैं बैठ जाता हूँ अपना रजिस्टर और या डायरी खोल के पेन के साथ, और सबसे पहले तो मैं उसके लिरिक्स को डाउनलोड कर लेता हूँ। सब कुछ है अब तो अपने पास, नेट से डाउनलोड करके उन लिरिक्स को मैं पढ़ता हूँ, और फिर मैं ये सोचता हूँ कि ये इनको गाने के मैं कोशिश करूँगा तो मैं कितना इसके साथ जस्टिस कर पाऊँगा। ये बहुत ज़रूरी है। गाने तो 25,000 गाने हैं, आप सबके साथ तो नहीं कर सकते। तो बिल्कुल। उनको उस लिरिक्स को पढ़ने के बाद मैं जब एक बार आश्वस्त हो जाता हूँ कि हाँ मैं इसको ट्राई कर सकता हूँ एज ए सिंगर, तब फिर इसका दूसरा आता है जो कि ज़्यादा ट्रिकी और टेक्निकल चीज़ है, टू क्रिएट बैकग्राउंड म्यूजिक। बैकग्राउंड म्यूजिक कंसिस्ट ऑफ सो मेनी कंपोनेंट्स। उसमें रिदम है, उसके अंदर हार्मोनाइजेशन है, उसमें साइड रिदम जिसको परकशन आप बोलते हैं, गिटार, पियानो, एवरीथिंग। यहाँ तक कि अभी जैसे मैंने गाना गाया था फिर कहीं कोई फूल खिला, उसमें तबला बजा था। मुझे तबला बजाना नहीं आता है,
मैं कीबोर्ड के ऊपर तबले के सैंपल्स मैंने डाल रखे हैं, उनको मैं हाथ से, कीबोर्ड को मैं हाथ से तबले की तरह बजाता हूँ। क्या बात है, तो, इतना मल्टी फेसेटेड, रियली ब्यूटीफुल, यस, तो रियली क्रिएटिव। तो उसको इस तरीके से मैं करता हूँ, और मैं जब तक वो पूरा नहीं हो जाता मैं उठता नहीं हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है कविता कि ड्यू टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सॉन्ग इट मे टेक आवर्स एंड आवर्स, तो मैं उसका जो मेन यानी गाने का जो बैकग्राउंड ढांचा है, स्ट्रक्चर, वो बना देता हूँ, क्योंकि रात को सोना भी है, और अगले दिन एट द अर्लीस्ट मैं उठ के उसके बाकी के जो पार्ट्स हैं उन पे काम करना शुरू कर देता हूँ। वाओ। बट आई डोंट गिव, ज़्यादा गैप नहीं देता हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है कि हमारे जो विचार का जो प्रवाह होता है उस पर इफेक्ट पड़ता है, थॉट प्रोसेस। आई डोंट ब्रेक दैट कंटिन्यूटी, सो इट कीप्स ऑन गोइंग ओवर देयर। और उसके बाद जब एक बार वो ट्रैक मेरा तैयार हो जाता है, फिर उसके ऊपर मैं बाकी सारी इंजीनियरिंग करता हूँ, यानी ऑल दोस टेक्निकल थिंग्स के, उसके EQ मतलब इक्वलाइजेशन उनका करना, कंप्रेशन करना, फिर फाइनल प्रोडक्शन, और फाइनली फिर मैं अपनी आवाज़ उसके ऊपर रिकॉर्ड कर लेता हूँ। गजब गजब। लोगों को लगता है बड़ी सिंपल सी ये चीजें हैं, बट कितनी क्रिएटिविटी इसमें जाती है, क्योंकि हम लोग तो सीधा माइक उठाते हैं, गा लेते हैं, कराओके बजाया और गा लेते हैं, और कई बार हम लोग स्ट्रगल करते रहते हैं उस पिच को मैच करने के लिए। बट सिंस आप सारे इंस्ट्रूमेंट्स खुद बजाते हैं, सिंस आप खुद अपने लिए ट्रैक बनाते हैं और प्ले करते हैं, तो इट रियली मस्ट बी वेरी ब्यूटिफुल फॉर यू। तो आपका ही कोई क्रिएटिव वर्जन, कोई क्रिएटिव सॉन्ग इफ यू वुड लाइक टू सिंग फॉर अस? तो सारे ही सॉन्ग ये क्रिएट किए मैं मेरे, Which at this moment you are feeling should sing? That's what creativity is all about, I believe. जी जी जी। Okay. अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरी मदर एक गाना बहुत गाया करती थी, लता जी का गाना है, वो भूली दास्तां लो फिर याद आ Wow, गई। beautiful song. मनमोहन साहब का है तो लता जी का गाना, लेकिन इस गाने को मैं गाता हूँ। Very और nice. इसके अंदर जो है मैंने अपनी पूरी क्रिएटिविटी दिखाने की कोशिश की है, इंक्लूडिंग दोज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ यस्टर ईयर्स, यानी उस टाइम पे जिस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स बजाए गए होंगे उनको ध्यान में रखते हुए आई ट्राई टू सिंथेसाइज दोज इंस्ट्रूमेंट्स, और लेकिन गाया मैंने उसको अपने ही स्टाइल में और पूरी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करते हुए। तो ये लता जी का गाना है, वो भूली दास्तां मेरी आवाज़ में। Very good. Please, please. फिल्म संजोग से है ये। वो भूले दास्तां लो फिर याद आ गई, वो भूले दास्तां लो फिर याद आ गए, नजर के सामने घटा सी छा गई, नजर के सामने घटा सी छा गई, वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई। कहाँ से फिर चले आए ये कुछ भटके हुए साए, ये कुछ भूले हुए नगमे जो मेरे प्यार ने गाए, ये कुछ बिछड़ी हुई यादें, ये कुछ टूटे हुए सपने, पराए हो गए तो क्या कभी ये भी तो थे अपने, न जाने इनसे क्यों मिलकर
नजर शर्मा गई, वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई। बहुत खूब। बड़े रंगी जमाने थे, तराने ही तराने थे, मगर अब पूछता है दिल वो दिन थे या फसाने थे। फकत एक याद है बाकी, बस एक फरियाद है बाकी, वो खुशियाँ लुट गई लेकिन दिले बर्बाद है बाकी। कहाँ थी जिंदगी मेरी, कहाँ पर आ गई, वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई। नजर के सामने घटा सी छा गई, नजर के सामने घटा सी छा गई, वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई, वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई। सुपर सुपर, कई बार सुना है ये गाना, लेकिन जो जैसे दिल को छुआ और जिस तरीके से एक एक शब्द दिल से लगा है, मतलब अल्फाज ध्यान आ गए कि क्या थे, वरना बहुत पहले कभी सुना था। तो ये तो बहुत ही खूबसूरती से आपने गाया, और मुझे आश्चर्य हुआ कि किस पिच पर आपने खींच लिया, हैविंग अ मेल वॉइस। इट इज समटाइम्स रियली डिफिकल्ट कि इसको कैसे खींचेंगे। मेरे को ये लग रहा था खींच पाएंगे आप, लेकिन पुरजोर आपने बहुत ही अच्छे से लिया इसको। और आपने जैसे भी बताया था कि आपका एक बेसिक सेटअप रहा, आपने बेसिक सेटअप करके उसको स्टार्ट किया अपने स्टूडियो को। तो कैन यू वॉक अस थ्रू योर प्रोडक्शन सेटअप? और मैं ये जानना चाह रही थी कि व्हाट गियर एंड सॉफ्टवेयर डू यू यूज? मतलब आप इतना अच्छे से करते हैं, आप अपने इंस्ट्रूमेंट्स खुद बजाते हैं, क्या आप कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? आपका प्रोडक्शन सेटअप कैसा है? वो कहते हैं ना, जैसे आपने कहा जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आपने बताया यू ज्वाइन, जी यू वेंट टू विजिट अ स्टूडियो, तो वो कहते हैं समटाइम्स वी से क्यूरियोसिटी किल्स द कैट। यहाँ मैं कहूंगी कि क्यूरियोसिटी गिव बर्थ टू दिस कैट who's been singing in front of us. So, please, if you could just tell us, जरूर। how is it? देखो कविता, मैंने ट्रांजिशन देखा है फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल रिकॉर्डिंग। डिजिटल रिकॉर्डिंग तो आजकल हर जगह चल रही है, बट व्हेन आई स्टार्टेड दिस जर्नी, यू नो, एज एन असिस्टेंट साउंड इंजीनियर, तो उस वक्त हम वो फेरो टेप्स के ऊपर काम करते थे। बड़ी बड़ी मैग्नेटिक टेप्स होती है ना, गोल गोल स्पूल्स, Yes, yes, yes. एंड इट यूज्ड घूमती टू बी रहती वेरी। थी। जी जी जी। तो वो सारी रिकॉर्डिंग एनालॉग होती थी, और वहाँ से जो ट्रांजिशन होके फिर जब डिजिटल डोमेन के अंदर ये चीज़ें आई, हम तो तभी अफोर्ड कर पाए क्योंकि वो चीज़ें आज भी बहुत महंगी है। Right. एनालॉग रिकॉर्डिंग गियर आज भी बहुत महंगा है, बियॉन्ड द रीच ऑफ अ कॉमन मैन। तो मैंने जो कविता अपना सेटअप किया हुआ है, आपके साथ मैं उसको शेयर करता हूँ। मेरे पास एक पुराना सा लैपटॉप है, जो कि कोर i3 चिप के ऊपर चलता है। आजकल तो i7 से नीचे कोई बातें नहीं होती। Exactly. है पुराना सेटअप। तो लैपटॉप के ऊपर मैंने जो इंस्टॉल किया हुआ है डॉ, दैट इज डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन। Mm-hmm. प्राइमरीली आई वर्क ऑन अ, इट्स अ जर्मन सॉफ्टवेयर, न्यूएंडो। Okay. न्यूएंडो। Okay. वैसे तो ऐसे तो बहुत से सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन शुरू से मैं काम करने के लिए मुझे वो ज़्यादा इजी लगती थी, तो वो बेसिक सॉफ्टवेयर मैं यूज़ करता हूँ। और उसके साथ ही जो डिजिटल इंटरफेस मेरे पास एक है, स्टेनबर्ग, अगेन वो भी यू नो जर्मन टेक्नोलॉजी वाली चीज़ है। वो है मेरे पास, प्लस मेरे पास एक एक्सटर्नल ऑडियो मिक्सर है। सो जिससे कि मैं बेसिकली साउंड डिज़ाइन करके भेजता हूँ अंदर, है ना, EQ वगैरह जिसको हम बोलते हैं ना, इक्वलाइजेशन। और मेरे पास सेट ऑफ माइक्स हैं। माइक्स अलग अलग तरह से, कंडेंसर माइक है विच इज़ वेरी सेंसिटिव,
ऐसे ही मेरे पास डायनामिक माइक्रोफोन्स हैं अलग अलग तरह के। श्योर कंपनी के हैं एंड शेनाइजर कंपनी के भी हैं। तो बहुत से लोगों को आश्चर्य होता होगा कि भाई माइक तो माइक है, कुछ भी गा लो। ऐसा नहीं है। हर एक इंस्ट्रूमेंट के लिए एक अलग माइक होता है। सिंगर के लिए डिफरेंट टाइप के माइक्स होते हैं। तो ये धीरे राइट। धीरे जब हम तजुर्बा करते हैं इस फील्ड के अंदर तब पता लगता है। तो ऐसे मेरे पास 5-6 माइक्स अलग अलग रखे हुए हैं। तो यानी जैसा मौका होता है उस हिसाब से व्हेन आई एम डूइंग अ टॉक शो जहाँ पर म्यूजिक का कोई हिसाब किताब नहीं है, तो वहाँ पे मैं डिफरेंट माइक यूज़ करता हूँ। अभी मैं जो आपके सामने माइक यूज़ कर रहा हूँ इट इज़ SM57 बीटा। ये ओके। श्योर कंपनी का माइक है। ओके। बहुत प्रचलित माइक है ये, ज़्यादातर लोग यही यूज़ करते हैं। ओके। तो इस तरीके से। और स्टूडियो में मेरे पास मॉनिटर स्पीकर्स रखे हुए हैं। तो जो कुछ भी मैं बनाता हूँ उनको मुझे बाद में सुनना भी है कि कैसा है, तो वो करता हूँ। और बाकी बिना हेडफोन के कोई काम हो नहीं सकता। सो वेरी ट्रू, वेरी तो इट्स अ वेरी हम्बल सेटअप। और कीबोर्ड में मेरे पास कविता है गॉट यामाहा का मेरे पास एक ट्रू। ओके। कीबोर्ड है। स्टूडियो क्लास कीबोर्ड है। उसके अलावा एक दो और भी कीबोर्ड्स मेरे पास रखे हैं। दे आर नोन एज मिडी कीबोर्ड्स। ओके। तो जी, तो जहाँ जहाँ जैसा इस्तेमाल होता है वो मैं करता रहता हूँ। बट इट्स अ वेरी वेरी हम्बल सेटअप। होम स्टूडियो है मेरा। ये कोई प्रॉपर स्टूडियो नहीं है। इस पे पूरा कबाड़ खाना है, बाकी चीज़ें भी रखी हुई हैं इसके ऊपर, इसके अंदर। क्रिएटिव कबाड़ खाना। जी, क्रिएटिव कबाड़ खाना। और हर हर कबाड़ के आइटम से अलग अलग नोट्स निकलते होंगे, आई एम डेफिनेटली श्योर। आप तो बिल्कुल सही कह रही हैं कविता जी। मैं मेरे मेरे जो ये होम स्टूडियो है इसमें साउंड एब्जॉर्प्शन के लिए लोग दीवार पे तरह तरह की चीज़ें लगाते हैं। कुछ भी नहीं है ऐसा। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ एक एंगल अपना बना के रखता हूँ ताकि जो रिफ्लेक्शंस होते हैं ना, एक्चुअली रिफ्लेक्शंस जो है वो खराब होते हैं हमारे रिकॉर्डिंग के लिए। तो रिफ्लेक्शंस को अवॉइड करने के लिए मैं पीछे 2-4 तौलिए रख देता हूँ। और इस किस्म की चीज़ें, देसी मेथड, सो दैट मेरी आवाज़ दीवार से टकरा कर मतलब रिफ्लेक्ट ना हो। मतलब आपका इससे सिंगिंग साउंड। भी कोर देसी है और आपका जो मेथड्स हैं वो भी कोर देसी हैं। तो आपका जी जी। सॉफ्टवेयर भी कोर देसी है। तो है ना, बिकॉज वो आपके पास आके देसी हो ही गया है। तो जी। कोई एक देसी ही हो जाए सॉन्ग। अच्छा ठीक है जी। जरूर जरूर जरूर। मैं आपको एक सॉन्ग सुनाता हूँ। अगेन रेयर सॉन्ग है ये भी। बिल्कुल, एक मैं मतलब ये आई एम सो एक्साइटेड। आज मैं एक नया सॉन्ग सुना मन्ना डे साहब का। डेफिनेटली मैं आफ्टर द शो आई टेक अ नोट फ्रॉम यू कि ये वाला सॉन्ग था, और डेफिनेटली वापस रिकॉर्डिंग देखूंगी। हाँ जरूर देखेगा वंस आप। अगेन आई गो फॉर दिस। तो एक एक फिल्म आई थी कविता, एहसास। ये आई ओके। थिंक 1979 वगैरह में आई थी। और फिल्म कोई ज़्यादा चले वाली तो नहीं, लेकिन क्या है कि बप्पी लहरी साहब का म्यूज़िक था। बप्पी लहरी साहब तो म्यूज़िक अच्छा देते ही थे, और 70s की मूवीज़ में डेफिनेटली। ज़बरदस्त थी उन्होंने। उसी फिल्म का एक गाना है जो कि बहुत कम सुनाई देता है, लेकिन मैंने फिर इसी को उठाया। और किशोर साहब का गाया हुआ है, और इस गाने के बोल हैं, कितने रांझे तुझे देखकर वाओ। बैरागी हो गए। बहुत ही सुंदर। ब्यूटीफुल। ऐसी ब्यूटीफुल प्लीज। कोशिश भी किया मैंने, थोड़ा बंगाली टच है। अच्छा। कितने रांझे तुझे देख के बैरागी बन गए। कितने रांझे तुझे देख के बैरागी बन गए। बैरागी देख के तुझे अनुरागी बन गए। अनुरागी बन गए रे। ब्यूटीफुल। कितने रांझे तुझे देख के बैरागी बन गए।
सांसों में राग लिए, होठों पे आग लिए, सांसों में राग लिए। किसको डसने तो चली जुल्फों के नाग लिए, हो किसको डसने तू चली जुल्फों के नाग लिए। हो कितने रांझे तुझे देख के बैरागी बन गए, बैरागी देख के तुझे अनुरागी बन गए, अनुरागी बन गए रे। कितने रांझे तुझे देख के बैरागी बन गए। Beautiful, really beautiful. Next line, अनुरागी बन गए, क्या बात है। रब का नजारा बदन, प्यार से प्यारा बदन, रब का नजारा बदन, प्यार से प्यारा बदन। दिल कहे जीवन देके ले लो तुम्हारा बदन, ओ दिल कहे जीवन देके ले लो तुम्हारा बदन। हो कितने रांझे तुझे देख के बैरागी बन गए, बैरागी देख के तुझे अनुरागी बन गए, अनुरागी बन गए रे। कितने रांझे तुझे देख के बैरागी बन गए। रियली ब्यूटिफुल, रियली ब्यूटिफुल। मैंने तो पहली बार सुना है ये सॉन्ग, और बिल्कुल गूज बम्स देने वाला ये सॉन्ग था, और बड़ा ही प्यारा। मुझे तो लगता है मैं ही बैरागी और अनुरागी दोनों ही बन जाऊंगी इस गाने को सुन के, कई कई बार सुनूंगी शायद। और बहुत ही अच्छा, मतलब वाकई में मैं क्या बोलूं, निशब्द कर दिया। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है इस क्रिएटिविटी पे, इसलिए क्योंकि आप इंजीनियरिंग, स्टैटिस्टिकल बैकग्राउंड, वो टेक्निकल मिक्सिंग और ये वो इन सारी चीज़ों के होते हुए भी इतनी क्रिएटिविटी इन योर सिंगिंग, क्योंकि आपके सिंगिंग में जो नोट्स और उतार और चढ़ाव, और प्लस आपका जिस तरीके से आपने बिगिन किया कई जगह, क्योंकि ओरिजिनल ट्रैक्स भी सुने हुए हैं, तो बहुत बहुत ही अच्छा, मतलब इतना ब्यूटीफुल सा ये सॉन्ग और इतना ब्यूटीफुल क्रिएटिविटी। इस सबको आप बैलेंस कैसे करते हैं, क्रिएटिविटी को और टेक्निकल एस्पेक्ट को? मतलब लोग कहते हैं ना कि ये तो मैथमेटिक्स है, ये तो स्टैटिस्टिक्स है, ये इंजीनियरिंग है, बोरिंग चीज है ना। बिल्कुल। और ये इधर अदर पार्ट ऑफ द ब्रेन, वन इज द लॉजिकल, वन इज द क्रिएटिव ब्रेन, जो कि मेल्स में हम कहते हैं दोनों ब्रेन्स नहीं होते हैं। तो हाउ डू यू मैनेज दिस बैलेंस, कहाँ से लाए हैं आप इस चीज को, तो वो थोड़ा बताइए। ये मतलब वैसे तो अगेन वही मैंने बताया, किसी चीज़ को मैं फॉर्मेट पे रख के नहीं करता हूँ, लेकिन मेरी एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रहती है कि जो गाना मैं करने वाला हूँ, बिकॉज व्हेन आई से करने वाला हूँ, इसका मतलब बहुत पूरा एक प्रोजेक्ट है अपने आप में, क्योंकि उस गाने की लिरिक्स को मैं पहले समझूंगा कि मुझे किस तरीके से गाना है इसको अपने स्टाइल से, और फिर उसके म्यूज़िक को मैं तैयार करता हूँ। तो जब मैं म्यूज़िक तैयार कर रहा हूँ, तो जहाँ तक बजाने वाली बात है, वहाँ पे तो एक मेरी अपना स्टाइल है जो मैं कर रहा हूँ, गिटार है या जो कुछ है, लेकिन यानी वो अपनी ओरिजिनल ऑडियो क्वालिटी के हिसाब से रिकॉर्ड हो, विच इज़ ओके। बेसिकली एन ऑडियो इंजीनियरिंग टर्म। तो यहाँ पर कला और तकनीक, इन दोनों का इस्तेमाल बिल्कुल बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बिल्कुल मैकेनिकल कोई चीज़, जैसे आजकल के जैसे म्यूजिक में हम कहते हैं लूप, एवरीथिंग राइट। इज लूप्ड।
लूपिंग में क्या होता है, आपने एक बार बजाई चीज फिर आप 100 बार उसको बजाते रहिए। ट्रू। मेरा ऐसा नहीं है। मेरे गानों में कविता, अगर अंतरे का, पहले अंतरे का म्यूजिक और सेकंड अंतरे का म्यूजिक एक सा है तो मैं उसको कॉपी करके पेस्ट नहीं करता हूँ, ओके। आई प्ले इट। प्लेट, राइट। होता क्या है उसमें कि वेरी मिनिएचर पार्ट ऑफ दैट, थोड़ा सा वो डिफरेंस हो जाता है उसके अंदर। वही वही ह्यूमन टच है। अगर आपने रिकॉर्डिंग के वक्त ह्यूमन टच नहीं रखा, आपने ऑटोमेशन कर दिया, तो मतलब ठीक है, ऑटोमेशन में कोई बुराई नहीं है क्योंकि आपका टाइम बचता है, बट मेरा दिल नहीं मानता। नहीं, मैं सही कह देसी रहे हैं आप। आदमी हूँ, मैं बिल्कुल देसी तरीके से काम करता सही हूँ। बात है। एंड आई होप परहैप्स दिस इज द रीजन कि हम जो कहते हैं ना, पुराने गानों की एक शेल्फ लाइफ थी, वो शायद इसीलिए कि आप कितनी भी बार सुनो वो मोनोटोनस नहीं लगेंगे आपको। लेकिन जो नए गाने हैं वो शायद जितना डिजिटल उस पर वर्क करते हैं, मिक्सर्स यूज करते हैं, साउंड चेंजर्स यूज करते हैं, वो सारा, वो ओरिजिनलिटी खत्म होके थोड़े दिन बाद आपको बोरियत होने लग जाती है। आप एक गाने को ना थोड़े दिन बहुत अच्छा लगेगा, फिर खत्म, ऐसा। जबकि पुराने गाने हम अभी तक सुनते आ रहे हैं, तो शायद इसी वजह से है कि हर वक्त कुछ नयापन उसमें हमको देखने को मिलता है। तो आपकी ये जो क्रिएटिविटी और टेक्निकल का जो ब्लेंड है, तो कोई ऐसा गाना है जो आप टेक्निकल और क्रिएटिव ब्लेंड के हाँ, साथ हमें जरूर जरूर सुनाना जरूर। चाहेंगे? अगेन नॉट सो वेरी ओल्ड मूवी, एक बड़ा अच्छा नगमा है, आशा भोसले ने भी गाया है और किशोर साहब ने गाया है, रोज रोज आंखों तले। ओह वाओ, बड़ा फेमस। ब्यूटीफुल। इसको बहुत ही मैंने, beautiful। जी, इसको मैंने एक अपने स्टाइल में किया है, जिसमें कि मैंने उसके उस गाने के कुछ कुछ जगहों पे काउंटर्स गाए हैं जो कि एक्चुअली वेस्टर्न म्यूजिक में खाली होता है। ओके ये ओके। टेक्निक इस्तेमाल करी है मैंने, और जाहिर सी बात है जब मैं काउंटर गा रहा हूँ और साथ में मैं गा भी रहा हूँ, तो वो चीज़ें मिलके उसका जो एक बड़ा अच्छा इफेक्ट आता है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ब्लेंड ऑफ क्रिएटिंग मेलोडी along with using टेक्नोलॉजी। रियली नाइस। मैं प्लीज। पेश करता हूँ फिल्म जीवा। रोज रोज आंखों तले, रोज रोज आंखों तले, ला 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 ला, रोज रोज आंखों तले एक ही सपना चले, रात भर का जल जले, आँख में जिस तरह ख्वाब का दिया जले, रोज रोज आँखों तले। छोटी सी दिल की उलझन है, ये सुलझा दो तुम, जीना तो सीखा है मर के, मरना सिखा दो तुम। छोटी सी दिल की उलझन है, ये सुलझा दो तुम, जीना तो सीखा है मर के, मरना सिखा दो तुम। रोज रोज आँखों तले एक ही सपना चले, रात भर का जल जले, आँख में जिस तरह ख्वाब का दिया जले, रोज रोज आँखों तले।
आँखों पर कुछ ऐसे तुमने जुल्फ गिरा दी है, बेचारे से कुछ ख्वाबों की नींद उड़ा दी है। आँखों पर कुछ ऐसे तुमने जुल्फ गिरा दी है, बेचारे से कुछ ख्वाबों की नींद उड़ा दी है। रोज रोज आँखों तले एक ही सपना चले, रात भर का जल जले, आँख में जिस तरह ख्वाब का दिया जले। ओ रोज रोज आँखों तले। Superb! What beautiful song! It's really a beautiful song. One of my really favorite songs. और पर सुनने में बहुत कम आता है, अक्सर नहीं सुनते हैं हम लोग. But it was really beautiful and it was done so beautifully. बहुत ही अच्छा गाया, बहुत ही अच्छा. इसमें वो जो एक लाइन है रोज रोज आंखों तले, उसको मैंने काउंटर्स लगा के उस गाने को एक्सेंचुएट कर दिया उसके। Yes, yes. बहुत ही उससे बहुत ही प्यारा सा एक इफेक्ट आया है, which is really good. It's heart touching जिसे कहते हैं ना, वो इफेक्ट आया उससे, which is really beautiful. And basically मैं देखती हूँ कि म्यूजिक में अब जैसे आपने कहा काउंटर्स लगाए, हमारी जिंदगी में भी कई बार काउंटर्स आ जाते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हमारी लाइफ में आते हैं. तो आई एम श्योर एंड आई अंडरस्टैंड कि आपकी ये जर्नी कोई बहुत स्मूथ तो नहीं रही होगी. सो व्हाट हैज बीन द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट ऑफ योर म्यूजिक? चैलेंजिंग पार्ट हर एक जो भी कोई म्यूजिक हम ट्रैक क्रिएट करते हैं उसमें कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ होती है जिसको रिप्रोड्यूस करने में बड़ी दिक्कत होती है. यानी जिस स्पीड, लय और जिस तरीके से वो बजाया गया है, तो मेरा ये सोचना है कि अगर मैं उस चीज़ को एग्जैक्टली रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ तो आई शुड जस्ट लीव इट. मैं उसके साथ मजाक ना करूँ. ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है अपने आप पे. और उसको फिर मैं एक अपने एक्सप्रेशन, यानी मैं अंडरमाइन नहीं कर रहा हूँ उस म्यूजिक डायरेक्टर को, लेकिन मैं उसको अपने एक्सप्रेशन के जरिए किस तरीके से वो कर सकता हूँ, तो वो मैं थोड़ा सा उसके अंदर चेंजेस ले आता हूँ. यही शिद्दत है शायद. जी जी, यही शिद्दत है. और मैं आपको बताऊँ, हर एक ट्रैक बनाना जो है वो उसमें कोई ना कोई पोर्शन होता है जो अपने आप में चैलेंजिंग होता है. बिल्कुल. तो एक बार में रिकॉर्ड नहीं होता है, फिर उसको 2-3 बार रिकॉर्ड करना पड़ता है, पिछला वाला डिलीट करते हैं, फिर उसको रिकॉर्ड करते हैं. तो, लेकिन तब तक करते हैं जब तक कि हमारे दिल को तसल्ली ना हो जाए. सही बात. तो ये इस किस्म के चैलेंजेस होते हैं इसके अंदर. बिल्कुल सही कह रहे हैं. और कई बार ये होता है कि जैसे कई बार मैं ये देखती हूँ कि खुद मन से कुछ कर लेना बड़ा आसान होता है. जी. लेकिन जो ऑलरेडी सेट किया हुआ काम है, चाहे वो कोई ट्रैक है, चाहे वो गीत है, चाहे वो कोई गजल है, नज्म है, कुछ भी है, लेकिन उसके ऊपर रिवर्क करना विद रिस्पेक्ट एंड शिद्दत, वो शायद वो ही अपने आप में मोस्ट चैलेंजिंग टास्क हो जाता है. क्योंकि एकदम से क्रिएट करना राइट फ्रॉम स्क्रैच इज अ लिटिल इजियर, सिंपलर, रादर देन वर्किंग एंड रीवर्किंग ऑन समथिंग. तो विच इज अगेन वेरी चैलेंजिंग टास्क. तो कोई ऐसा गीत अगर आपको लगे, जो आपको लगा हो कि मुझे इसको या इसका एक ये पार्ट करने में मुझे थोड़ा चैलेंज आया या कुछ ऐसा, तो अगर आप वो हमें बताना चाहें. जी जी जी. मैं इंसिडेंटली मैं बंगाली सॉन्ग्स भी कुछ एक गाया करता हूँ. तो मैंने एक बार सोचा कि कुछ इस किस्म का किया जाए कि हमारे जो एस.डी. बर्मन साहब ने जो काफ़ी कुछ गाने बनाए हैं, बड़े खूबसूरत गाने, ओरिजिनली तकरीबन सारे गाने बंगाली में बने पहले. यस. फिर बाद में हिंदी में बने. ओके. तो मेरे दिमाग में आया कि एक ऐसा किया जाए, फ्यूजन काइंड ऑफ अ थिंग, जो कि अपने आप में एक चैलेंज होता है कि मैं पहले तो उस बंगाली जो गाना है उसको मैं गाऊं बांग्ला, और फिर धीरे धीरे से ट्रांजिशन करते हुए, यानी बिना दिमाग को झटका लगाए हुए सीधे से इसको ट्रांजिशन करते हुए हिंदी वाले वर्जन पे ले आऊं.
तो गजब। ऐसे ही मैंने कुछ कोशिश की, और ये इन गानों को मैं अक्सर बंगाली क्लब में गाता हूँ। मुझे ओके। दुर्गा पूजा के टाइम आई एम वेरी लकी कि मुझे इनवाइट आता है वहाँ से, कि कर्नल वीडी सिंह साहब से प्रार्थना है कि वो एक बंगाली गाना प्रस्तुत करें, एंड आई एम दी वेरी ओनली स्वीट। नॉन बंगाली इन दैट क्राउड। लेकिन मैं इसको एक बहुत बड़ी इज्जत अफजाई मानता हूँ अपने लिए, कि उन्होंने बिल्कुल। मेरे से रिक्वेस्ट किया कि आप एक बांग्ला गाना गाइए, तो मैं फिर उनको इस किस्म की चीज़ें सुनाता हूँ जो कि लोगों को अच्छी भी डेफिनेटली। लगती प्लीज 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 सिंग इट फॉर अस। एंड हमें भी है। बंगाली नहीं आती है, आपको भी नहीं आती, पर अब आप गा सकते हैं तो हम उसको डेफिनेटली अप्रिशिएट कर सकते हैं। जी जी। प्लीज प्लीज गो अहेड। किशोर साहब का है ये पहला पार्ट बंगाली, दूसरा पार्ट हिंदी। ओके, परफेक्ट। যে নদী যায় সাগরে, কত কথা শুধাই তারে, এত জানে তবু নদী কথা বলে না, কথা বলে না, কেন বলে না, কেন বলে না। এই যে নদী वेरी मेलोडियस। কেউ যারে বন্ধুর বাড়ি, নাও বাইয়াও জানে, কেউ শাখা ভাঙ্গা সিঁদুর ধুইয়া ফিরে ভাতের দানে, কারো আশার তরি বন্ধু পায় না রে কিনারা, ভালোবাসা মরণ হইয়া তারে করে ইশারা, এত জানে তবু নদী কথা বলে না, কথা বলে না, কেন বলে না, কেন বলে না। এই যে নদী हिंदी वर्जन नाउ। चलती चली जाए जिंदगी की डगर, कभी खत्म ना हो ये सफर, मंजिल की उसे कुछ भी न खबर, फिर भी चला जाए दूर का राही, दूर का राही, चलती चली जाए जिंदगी की डगर, कभी खत्म ना हो ये सफर, मंजिल की उसे कुछ भी न खबर, फिर भी चला जाए दूर का राही, दूर का राही।
के न देखे, कुछ भी न बोले, भेद अपने दिल का राही न खोले। आया कहाँ से, किस देश का है, कोई न जाने क्या ढूंढता है। मंजिल के उसे कुछ भी न खबर, फिर भी चला जाए दूर का राही, दूर का राही। सुपर्ब सुपर्ब। इसका जो हिंदी वर्जन है वो किशोर साहब की एक 60 सी मूवी थी जो उन्होंने बनाई थी, दूर का राही। उन्हीं का प्रोडक्शन था और उन्हीं का दिया हुआ संगीत था, लेकिन जो गायक कलाकार थे वो हेमंत साहब थे। देखिए कितनी यूनिक बात है ये। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दूर का राही जो हिंदी वर्जन जो गाया है, ये हेमंत साहब ने गाया है किशोर साहब की बनाई हुई धुन पर। मतलब क्या यूनिक कॉम्बिनेशन है। मतलब कहाँ किशोर दा, कहाँ हेमंत साहब, उनका एक अलग लहजा, और क्या एक्सेप्टेंस रही होगी, क्या रिस्पेक्ट रहा होगा एक दूसरे के लिए, तब जाके ये नगमा निकल के आया। आज के टाइम पर अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ें नहीं है। लोग इतना कमर्शलाइज होते हैं, दे वांट टू कीप थिंग्स टू देमसेल्व्स। उस जमाने के सिंगर्स एक दूसरे की इज्जत करते थे। कई बार तो हमने सुना है कहानियों में कि कुछ गाने बनाए गए रफ़ी साहब के लिए, उन्होंने कहा नहीं नहीं ये किशोर अच्छा गा सकता है, उसको गवाओ। सोचिए, बिल्कुल। यही ये चीज़। बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत बड़ी चीज है। और मतलब मैं सोच भी नहीं सकती, दे आर पोल्स अपार्ट। मतलब जो भी सुनेंगे वो सोच नहीं सकते हैं, जो सुन रहे हैं वो सोच नहीं सकते कि कहाँ किशोरदा का एक अलग तरीका है, कहाँ हेमंत साहब का एक अलग तरीका है, और एक ने बनाया एक ने गाया। तो दिस इज क्वाइट अमेजिंग। और शायद यही पुराने नगमों का रूप है, पुराने नगमों का बड़प्पन है, पुराने गायकों का बड़प्पन है कि ये इस तरीके से हम उनको इज्जत दे पाते हैं उसी वजह से। और मैं भी यही देख रही हूँ कि आपने बहुत करीने से बहुत ओल्ड सॉन्ग्स पे ट्रैक्स डेवलप किए हैं, और जी ये सब। तो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि थोड़ा सा मैं जानना चाह रही हूँ, एक छोटा सा चीज पूछना चाह रही हूँ कि जी। क्या एक स्पेसिफिक रीजन है जिसकी वजह से आप ये पुराने गानों पे ही वो बनाते हैं ट्रैक्स। आई मीन व्हाई मेजरली रीमेक ट्रैक्स ऑफ ओल्ड सॉन्ग्स। देखिए, एक तो मैंने आपको बताया कि ये जो पुराने गाने हैं इनकी खुसूसियत ये है कि इनकी लिरिक्स और इनकी जो धुन है उनमें इतना आपसी में तालमेल अच्छा है। उस ज़माने में हम सुनते हैं कि यानी कहने कि सब्जी के भाव से गाने नहीं बनते थे। गाना अगर बना है, महीने में एक रिकॉर्ड हुआ है, तो वो एक ही रिकॉर्ड हुआ है फिर। तो क्योंकि उसके ऊपर रिसर्च होती थी पहले, लिरिक्स हैं वो पसंद आएंगे कि नहीं, प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को फिल्म के कि नहीं, उस सिचुएशन के हिसाब से गाना बनेगा। तो ये सारी चीज़ें बड़ी मायने रखती थी। और मैं आपको बताऊं कि मेरा जो रुझान है रेट्रो की तरफ, वो बेसिकली आई ओ इट टू माय माय लेट मॉम। यस। बिकॉज मैं उनके गाने सुन सुन के बड़ा हूँ। मैं इनफैक्ट लता के बहुत से गाने गाता हूँ लेकिन अपने बिल्कुल। स्टाइल में। जैसे एक मैंने अभी आपको सुना दिया था, बोली दास्तां। इसके अलावा एक दो और गाने हैं डिफिकल्ट सॉन्ग्स विच माई मदर यूज्ड टू सिंग। खाना रोटी बनाते वक्त गाती रहती थी वो, और मैं उनको सुनता रहता था। वो उसका इतना प्रभाव पड़ा मेरे दिमाग पे कविता कि मैं बस उसमें खो गया। तो इसलिए मेरा खास प्यार है रेट्रो म्यूजिक के साथ। ओके। तो हैव यू collaborating with someone, or have you thought of some collaborations? क्या किसी आर्टिस्ट के साथ आपने कोई कोलैबोरेशन पहले किया है? जी जी जी। वैसे तो मैंने कुछ एक इंटरनेशनल ग्रुप्स के साथ यानी बजाया है। आई एम ए बेस गिटार। अभी भी जो मेरी आइडेंटिटी है वो अगर चेक की जाए कर्नल वीडी सिंह, तो कर्नल वीडी सिंह एज ए बेसिस्ट ज़्यादा मशहूर है, बिकॉज आई एम प्राइमरीली अ बेस गिटारिस्ट। ओके। म्यूजिक कंपोजर तो मैं एक सेल्फ स्टाइल्ड हूँ तो कोलैबोरेशन मैंने काफ़ी लोगों के साथ किए हैं, और एक ओके। रिसेंट ईयर्स में, रिसेंट मंथ्स में मैंने कुछ एक कोलैबोरेशन किए हैं।
वो कोलैबोरेशन मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर है, उस पे लिखा हुआ भी है कोलैबोरेशन। और मेरे एक बहुत अजीज दोस्त हैं, ओके। वो भी एक्स आर्मी के ही हैं, कैप्टन संजय गहलोत। ही रिटायर्ड एज ए सीनियर IAS ऑफिसर, रेवेन्यू सर्विसेज में थे वो। और बहुत ही ज़हीन इंसान है वो, मेरे अच्छे पर्सनल दोस्त हैं। तो हमने कोलैबोरेशन किया बिल्कुल, यानी डिस्टेंस पे बैठ के। उन्होंने दिल्ली में बैठ के फ्लूट और मैं यहाँ बैठ के अपने बाकी इंस्ट्रूमेंट्स, और हमने कुछ एक पुराने गानों वाओ, को दैट्स वेरी गुड। जैज का एक एंगल देकर, जी जी, वो चीज़ें मतलब लाइव तो यहाँ नहीं दिखा सकता मैं, क्योंकि वो भी यानी टेक्निकल बहुत चीज़ें उसके अंदर हैं, कि वो वहाँ से बजा रहा है, मैं यहाँ से बजा रहा हूँ। सो मैंने बहरहाल उसको करके, उसका वीडियो बना के और इसको पोस्ट किया हुआ है। तो अगर इस प्रोग्राम को और दर्शक भी देख रहे हैं तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो मेरे यूट्यूब पे मेरे चैनल पर जाएं, पदार्थ स्टूडियो। एंड उसमें आई मीन हंड्रेड्स ऑफ सॉन्ग्स देयर, उसमें कुछ एक में आपको कोलैबोरेशन मिलेगा कि मैं राइट, यहाँ बैठ के बजा रहा हूँ, वो दिल्ली में बैठ के बजा रहा है। दैट्स रियली नाइस। आई हर्ड सम ऑफ देम बट मुझे नहीं पता था कि ये लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है। जी I जी। could not realize that. And besides that, that's how that really leads me to asking you कि आप कैसे अपने ऑडियंस को एंगेज करते हैं और उनके फीडबैक का कैसे इनकॉर्पोरेशन करते हैं। मेरा बहुत सिंपल सा तरीका है कविता, कि जब मैं स्टेज पे जाता हूँ, वैसे मैं बहुत ज़्यादा स्टेज शोज नहीं करता हूँ, लेकिन ज़्यादातर मेरा जुड़ाव लद्दाख के साथ रहा है, बिकॉज माई लास्ट पोस्टिंग वॉज इन लद्दाख, 2015 ओके। से 17 तक बीच में। दैट इज अ टाइम व्हेन आई एक्चुअली गॉट इनटू बुद्धिज्म आल्सो, आउट ऑफ एकेडमिक इंटरेस्ट एंड तिब्बतन म्यूजिक। तो इंसिडेंटली मेरी एक एल्बम भी बड़ी मशहूर हुई है, तिब्बतन जैज फ्यूजन। तिब्बतन म्यूजिक है जो जैज फ्यूजन के साथ मैंने की है, एंड इट इज ऑलरेडी स्ट्रीमिंग ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स। यस। तो मैं ऑडियंस के साथ कैसे जुड़ता हूँ, मेरा एक सबसे बहुत सीधा फंडा है। जब आप स्टेज पे जा रहे हैं तो आप ये सोच के मत जाइए कि आप खाली गा रहे हैं, गाए और चले गए, बड़ा मैकेनिकल हो जाता है। आपको ऑडियंस के साथ गुफ्तगू करनी है, आपको उनके साथ कनेक्ट होना है पहले। इफ़ यू डोंट कनेक्ट विद द ऑडियंस, ऑडियंस बस सुन के टाइम पास करेगी और अपनी घड़ी की तरफ देखेंगे और फिर चले जाएंगे वहाँ से। सो आई टॉक टू दैम व्हेन आई एम सिंगिंग सॉन्ग्स, उसके बीच में मेरी उनसे बातचीत होती है। और जिस गाने को मैं गाने जा रहा हूँ उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ, और मैं ये भी बताता हूँ कि मैं ये गाना क्यों गा रहा हूँ, मतलब इस गाने को ही मैंने क्यों चुना। वाओ। तो जैसे तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि हमको ऑडियंस के साथ जोड़ती हैं। और बाकी बहुत ज़्यादातर मेरा जो काम है वो यूट्यूब के ऊपर आ जाता है, और फिर मुझको वहाँ से जो ऑडियंस है उनके फीडबैक भी आ जाता है। Very nice, very nice. So anything in the pipeline or anything which is just about to come or release, and what's your next project? Let's अ, look forward to it with our own excitement. कविता, मेरा जो एक जो पहली तिब्बतन जैज फ्यूजन म्यूजिक की बनी थी, दैट वाज लॉन्च्ड इन 2023। और वो करीब 10-15 प्लेटफॉर्म से लॉन्च हुई थी, जिसमें कि जो बहुत फेमस प्लेटफॉर्म है लाइक एप्पल म्यूजिक, अमेजोन म्यूजिक, स्पॉटिफाई, यूट्यूब, इस पे तो चल ही रहा है वो। उसके अलावा मैं इसके एक सेकंड पार्ट के ऊपर मैंने काम करना शुरू कर दिया है, Okay. जिसके अंदर की आई विल बी चैंटिंग। बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो होते हैं ना, वो एक स्पेशल टाइप की साउंड निकालते हैं अपने, Okay. वेरी गिट्स ए काइंड ऑफ गटरल सॉन्ग। वो आसानी से हर कोई नहीं निकाल सकता है, उसकी भी रियाज किया मैंने। Okay. तो उसमें बोल कम होता है, लेकिन उसके अंदर जो साउंड होती है बहुत ही लो पिच की साउंड होती है, Okay. वो उसमें आती है। और यानी तिब्बतन इंस्ट्रूमेंट्स उसके साथ चलता है, जो कि मैं सिंथेसाइज कर लेता हूँ अपने स्टूडियो के अंदर। तो फिलहाल दिमाग में ऐसा ही कुछ योजना चल Really रही है। मैं beautiful thought, really a beautiful thought, and I'm 100% sure it must be having a lot of therapeutic effect for जी the mental health also of the people, and for even, just a casual listening maybe, or even for soothing your soul. जी That is जी। what I believe, and I'm 100% looking forward to it. So really, really amazing to have you here on the show, Colonel VD Singh. And definitely it was an honor, I would say, that Zenaverse family gave me an opportunity to interact with you out here on this platform. And if time permits, if you can end it with a song, or maybe we can call it a day, whatever suits you. So thank you so much once again, and heartfelt gratitude to the entire Zena family. Thank you very मैं much. मैं चलते चलते गाने के साथ और फिर बाय करूँ। Definitely, definitely.
ये भी एक 70s की मूवी का है, अगेन नॉट सो फेमस सॉन्ग, लेकिन बहुत ही हॉन्टिंग गाना है ये, तो इसलिए मैं इसको किशोर साहब का इसको मैं गा के जाऊंगा। बिल्कुल जरूर। मैंने कुछ खोया है, मैंने कुछ पाया है तेरे प्यार में। गजब, गजब। क्या बात। मैंने कुछ खोया है, मैंने कुछ पाया है तेरे प्यार में। मैंने कुछ खोया है, मैंने कुछ पाया है तेरे प्यार में। मेरे कुछ वादे हैं, मेरे कुछ अरमां हैं, मेरे कुछ सपने हैं। मैंने कुछ खोया है, मैंने कुछ पाया है तेरे प्यार में। Really beautiful. खफा होने का ये कोई तौर नहीं, तेरे सिवा मेरा कोई और नहीं। खफा होने का ये कोई तौर नहीं, तेरे सिवा मेरा कोई और नहीं। दुनिया की आंखों से बचेंगे हम कहाँ, और करीब आ जाने जहां। मैं तेरे पीछे हूँ, कोई मेरे पीछे है, दुश्मन इतने हैं। हाँ मैंने कुछ खोया है, मैंने कुछ पाया है तेरे प्यार में। Thank you. बेचैन हूँ मैं, अभी तुझे पता नहीं कौन हूँ मैं। तेरी भोली अदा पे बेचैन हूँ मैं, अभी तुझे पता नहीं कौन हूँ मैं। मन मेरा पापी है, बचा मुझे सनम। हंसू नहीं जो मैं कहूँ, सच है तेरी कसम। अरे क्या जाने तू, नहीं पहचाने तू, मुझे गम कितने हैं। हाँ मैंने कुछ खोया है, मैंने कुछ पाया है तेरे प्यार में। मेरे कुछ वादे हैं, मेरे कुछ अरमां हैं, मेरे कुछ सपने हैं। मैंने कुछ खोया है, मैं खोया है तेरे प्यार में। तेरे प्यार में।
you so much, Colonel VD Singh, for such an amazing evening. Thank you so much once again. And thank you to all the guests who have joined us here. Thank you so much, everyone. Thank you. Bye bye. Shabba khair. Bye bye, everyone.